नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगेन्द्र देव रचित परमात्मा प्रकाश નો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ। એમાં 70મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય પૂરો થવા આવ્યો છે। 70મી ગાથાનો અન્વયાર્થ ટીકા ભાવાર્થ બધું કર્યું છે અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ આપેલ પ્રવચનના મહદ અંશો લીધા છે। શેષ અંશો આજે લઈએ। તે પહેલા ગાથા 71નો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ। ગાથા 71નો પણ આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી વિસ્તાર આપણે સમજવાના છીએ। તો 70મી ગાથા પૂરી થતા આપણે 71મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીશું। ગાથા 71મી ગાથાના उपोद्घातમાં કહે છે कि आगे ऐसा कहते हैं कि हे जीव तू जरा मरण देह के जानकर डर मत। देहना वृद्धावस्था मरण वगैरे ने जानी અને તું ભયભીત ન થાય એ તારા નથી આત્માના નથી એમ કહેવાનો આશય છે। 71મી ગાથામાં અહીંયા કહે છે કે દેહસ્ય દ્રષ્ટવા જરા મરણમ मा भयम जीव कार्षि य अजर अमरः ब्रह्म परः तम आत्मानं मन्यस्व। गाथाना अन्वयार्थમાં કહે છે कि जीव देहस्य जरा मरणम दृष्ट्वा हे आत्माराम तू देह के बुढ़ापा मरने को देखकर भयम मां कार्षि डर मत कर। यह अजरा अमर पर ब्रह्म जो अजर अमर पर ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है तम आत्मानं मन्यस्व उसको तू आत्मा जान। हे आत्माराम तू देह के बुढ़ापा मरने को देखकर डर मत कर। जो अजर अमर पर ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है उसको तू आत्मा जान। गुजराती में गाथा लईए। जरा मरण जीव देहना देखी भय नहीं आण। अजरा अमर पर ब्रह्म जेते निज आत्मा मान। हे जीव देहना जरा वृद्धावस्था मरण मृत्यु जोईने भय पामीश नहीं। हे जीव देहना जरा मरण जोई ने भय पामीश नहीं। जे अजर अमर परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव छे तेने तू आत्मा जान। 7 પ્રકારના ભયની અંદર જીવને આ મરણનો ભય હોય છે। આકસ્મિક ભય હોય છે એટલે એમાં પણ એવું જ છે। એટલે આ ભય જે છે એ તો સમ્યક દ્રષ્ટિને જાય। સમ્યક દ્રષ્ટિ નિશંકતી થઈ જાય છે એટલે શંકા નથી એટલે એને કોઈ ભય રહેતા નથી।
આ લોકનો ભય પરલોકનો ભય પણ નથી રહેતો. પોતાનું ગુપ્ત કાંઈ છે એ જાહેર થઈ જવાનો પણ ભય નથી રહેતો. એટલે જે 7 પ્રકારના ભય કયા એમાંનો કોઈ ભય રહેતો નથી. એમાં અહીંયા મરણના ભયની વાત લીધી છે. અને રોગનો ભય એવો પણ ભય સમ્યક દ્રષ્ટિને રહેતો નથી. એ બધા ભય એને તો દૂર થઈ જાય છે. અહીંયા તો ઉપદેશ દ્વારા આચાર્ય ભગવાન સમજાવે છે કે આ મરણ છે, વૃદ્ધાવસ્થા છે, જે કંઈ છે તે બધું જોઈને તું ભય પામીશ નહીં. તું એને જોઈને ભય પામીશ નહીં, કેમ કે એ દેહના છે અને તું તો ભગવાન આત્મા અવિનાશી ચીજ છો. એટલે કહે છે કે પરમ બ્રહ્મ શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેને તું આત્મા જાણ. એવો આત્મા એ મરતો પણ નથી અને જન્મતો પણ નથી. એ વાત તો 70મી ગાથામાં આવી ગઈ. આગળ અહીંયા કહે છે કે જો કે વ્યવહાર નથી, જરા મરણ જીવના કહેવાય છે. વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણ અને જન્મ ને એ બધું ભલે જીવનું વ્યવહાર નહીંથી કહેવાય, પણ નિશ્ચય નહીંથી એમ નથી. એ આત્માનું નથી. આત્મા તો અવિનાશી ચીજ છે. એટલે કે છે કે જો કે વ્યવહાર નહીંથી જરા મરણ જીવના કહેવાય છે, તો પણ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી એ ધર્મો જીવના નથી પણ દેહના છે. દેહનું ઉપજવું અને એનો નાશ થવો એટલે કે એવા પૂતગળ પરમાણુનો સ્કંદ એવો એ દેહ, એના આ જન્મ અને મરણ છે, એની વૃદ્ધાવસ્થા છે, એના રોગ છે, એ બધું દેહનું છે, શરીરનું છે. અને એનાથી ભિન્ન આ આત્મા છે. અને એમ જાણી ભય રાખીશ નહીં. બધા આવો ઉપદેશ તો આપે, પણ એ ઉપદેશ જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન પ્રગટ નથી કરતો ત્યાં સુધી ખરેખર એ ઉપદેશ એને કાર્યકારી નથી થતો. આચાર્ય ભગવાને પણ ઉપદેશ આપ્યો છે અને ઉપદેશ આપી અને ભય છોડાવવા માટેનો એક આ પ્રયત્ન છે. પણ ખરેખર તો આચાર્ય ભગવાન તો સમ્યક દર્શન સુધી આપણને લઈ જાય છે. એટલે આ એક શરૂઆત કરી છે કે તું પહેલા એ બધા ભય છોડી દે. મૂળમાંથી તો ભય નહીં છૂટે, પરંતુ એવા ભય છોડી દે અને તું આત્માનું લક્ષ કર. શુદ્ધ સ્વભાવ રૂપ જે આત્મા છે એનું તું લક્ષ કર. એમ કરાવવું છે. અને પછી જયારે એનું લક્ષ થશે ત્યારે એને કોઈ ભય નહીં રહે. અહીંયા કહે છે કે એમ જાણી ભય રાખીશ નહીં. મનમાં એમ વિચાર કે અજર અમર પરમ બ્રહ્મરૂપ શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ એ જ મારું સ્વરૂપ છે. એ શુદ્ધ સહજ આત્મા જ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે. આ રીતે 71મી ગાથા છે, એનો વિસ્તાર પણ આપણે આજે લેવાના છીએ. તો 70મી ગાથા જે ચાલે છે એનું સહેજ પુનરાવર્તન કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવે આગળ એનો વિસ્તાર કર્યો છે તે લઈએ. 70મી ગાથામાં એ વાત ચાલી રહી છે. શિષ્યને કહે છે આચાર્ય ભગવાન કે દેહને જન્મ જરા તથા મરણ છે. દેહને અનેક પ્રકારના આ વર્ણ છે, દેહને રોગ છે, દેહને અનેક પ્રકારના આ લિંગ છે. એ બધું દેહને છે, એ આત્માનું નથી. તો એનો વિસ્તાર આગળ લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ બીજો, વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 254 ઉપર અહીંયા બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ આગળ સમજાવે છે. स्वभाव के सन्मुख ये हुआ जो मति ने शुद्ध ज्ञान, इस मति शुद्ध ज्ञान में सारी चीज आती नहीं, पर सारी चीज का ज्ञान आता है. हाँ हाँ, ये मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं. पंडित जी छठकन आगे में धौला में है,
मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते। गजब बात। जे भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा उसका ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, क्या कहते ज्ञान। ये मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं, ऐसा पाठ है दौड़ में। आओ जैसे चंद्र की बीज उगती है तुम उसकी पुण्य होगा ने। ऐसे भगवान आत्मा पूर्णानंद की प्रतीति ने सम्यक ज्ञान उसका हुआ, उसका हो। एक ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं, सपाट है। सचखंड बुलाते नाम अल्पकाल में आओ। अरे केवल ज्ञान का वीर नहीं रह सके। प्रभु तेरा ज्ञान हुआ ने। पूर्णानंद का नाथ का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान सम्यक ऐसे पुकार करते हैं। सुखोत्सव जी आई बात है भगवान। लोगों ने એવું લાગે છે વ્યવહારના રસિયા નહીં જાણે આ બાપુ માર્ગડા જુદા પ્રભુ વિતરાગ સર્વજ્ઞ જીનવરદેવ ગણધરો ને ઇન્દ્રોની વચ્ચે આ વાત કરતા હતા। એ વાત સંતો જગતને આડતિયા તરીકે કહે છે। સમજાય છે કાંઈ? એ બાઈ का लिंग ऊपर ही दृष्टि छोड़ दे। अरे भाव लिंग ऊपर की दृष्टि छोड़ दे। भाव लिंग प्रकट हुआ है दृष्टि द्रव्य की दृष्टि से। पर हमें अभी भी भावलिंग की दृष्टि छोड़ देगी से उसका आश्रय छोड़ दे। त्रिलोक नाथ शुद्धात्मा भगवान परिपूर्ण परमात्मा शक्ति परा है, उसके आश्रय जा, उसका अवलंबन ले। प्रभु तेरे जन्म मरण रहित होना तो ये मार्ग है। समझ में आया? एक उपाय तो ये रहा। एक ही उपाय, दूसरा है ही नहीं। खुलासा करते हैं कि एक उपाय। एक उपाय दूसरा कहा है प्रवचन सार में। आगम के स्वलक्ष्य अभ्यास करना एक दूसरा उपाय ऐसा दिया है पंडित जी। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार पहली 92 का था ना, उसमें दिया है। ये समझ आए। तेरे उपाय है, दूसरा उपाय स्वलक्ष्य आगम का अभ्यास करना। नोट में दूसरा करना। दूसरा राग से होता है, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है। संसार में समझ में आया? ख्याल तो है ना, ख्याल सब बात आने वाली है, इसी आती है, आती है भावे को। भगवान, अरे तेरे भगवान कर बुलावे न तुम न जागी। प्रभु तो भगवान है। तेरे आश्रय से जो दशा होती है ये क्या होती है? ये कहते हैं कि वितराग सदा आनंद रूप भगवान सब तरह उपाधि निज भावों को प्रणमता है। ये भगवान पूर्णानंद का नाथ अपनी सन्मुख होकर दर्शन ज्ञान चारित्रपणे निज भावपणे प्रणमता है, तब अपना शुद्धात्मा उपाधि है, तब ये वक्त है। फिर तो परमात्मा प्रकाश है। योगेंद्र देव
कुंकुंदाचार्य की छाप सब ग्रंथ में है। समय आदि नहीं, सब ग्रंथ में है। कुंकुंदाचार्य तो अलौकिक है। हाँ। तो दर्शन देवसेनाचार्य कहा ना, देवसेनाचार्य दर्शन सार में पुस्तक है, छोटी दर्शन सार। मैं उसमें कहा प्रभु कुंकुंदाचार्य को कहते थे, आप महाविद्य में जाकर ऐसा मार्ग जो न लाते तो हम मुनि धर्म कैसे पाते। आप न खींचो। पद्मनंदी, तुम महाविद्य में जाकर साक्षात त्रणलोकना नाथ विराजे है। ये वक्त હતા ને અત્યારે એ જ ભગવાન છે। એ તો સંમત 49 में, હજી તો 2000 वर्ष गई, हजी तो 2 वर्ष रहने वाला है प्रभु। करोड़ पुरु का आयुष है। सितंबर 84 लाख पुरु कहते हैं, करोड़ पुरु है। एक पुरु में 56 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाते हैं। एक पुरु में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाते हैं। उसको एक पुरु कहते हैं। ऐसा करोड़ पुरु का प्रभु का आयुष है। समझ में आया? तो प्रभु तुम्हें महाविद्य में हम हाथ करते हैं, मेरा प्रभु आप महाविद्य में जाकर तुम्हें ऐसा मार्ग न लाते तो मुनि धर्म कैसे पाते। तो उसका अर्थ ऐसा हुआ कि दूसरा मुनि का अनादर किया। वो कहा था नहीं वक्त कि एक कुंकुंदाचार्य को मानना चाहेगा तो दूसरा संतों का बलिदान होगा। अरे भगवान ऐसे न हो भाई। जिसकी विशेष महिमा अपने आई है, जिसके प्रताप से अपना का पान हुआ, उसकी महिमा गाते हैं। मुनि कहते हैं देवसेनाचार्य भावलिंगी संत नाथ पद्मनंदी प्रभु, तुम महाविद्य में जाकर आ मार्ग न लाते तो हमें धर्म कैसे पाते। तो उसका ही भाव होता है, दूसरा क्या पास धर्म है नहीं, दूसरा मुनि पास है। उसकी बात क्या यहाँ तो उत्कृष्टपणे सहेली भाषा में, साधारण भाषा में आपे जो सीधा भगवान पास जाकर लाया, ऐसी बात दूसरे मुझे नहीं चाहिए। एम कहते हैं तो पंडित जी क्या अमनादर हो गया, दूसरा मुनि का बलिदान हो गया। ऐसे है नहीं भाई, एम न बोला। अने वो वंदरामन दास एम कहते हैं, वंदरामन कुंकुंदाचार्य जैसे हुए नहीं, हुएंगे नहीं, होता ही नहीं। उसकी महिमा जिसको अंतर में आई उसकी बात करते हैं। उसके दूसरा मुनि का अनादर हो गया, ऐसी बात नहीं। प्रभु समझ में आया है? मुनि कहते हैं आचार्य। हाँ, देवसेन आचार्य कहते हैं। बावलिंगी संत था। ये कहते हैं प्रभु तुम महाविद्य में जाकर ऐसी बात सरल सहज अल्प भाषा में महान मर्म भरा ऐसी बात न लाते प्रभु, हम धर्म कैसे पाते। समझ में आया? हाँ ही कहते हैं देह आदि का ममता विकल्प जाल को छोड़कर जिस समय आए भजन है, विकल्प को छोड़कर जिस समय
यह जीव वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि निज भावों कर प्रणता है। જે समय अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्रणमते हैं ते काल में प्रभु तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है। एक काल में शुद्धात्मा उपाधि है। जिस समय जीव वितराग सदा परमानंद रूप सर्वत्र उपाधि जिस भावों कर प्रणमता है निज भावों कर प्रणमता है। समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निज भाव से प्रणमते हैं जिस समय ये समय आत्मा उपाधि हुआ। लक्ष्य में लिया धारणा में लिया क्या उपाधि है? ये उपाधि तो हुआ नहीं। परमात्मा प्रकाश दोपहर को समय साथ चलते हैं हमारा प्राण में। कहते हैं प्रभु पूर्णानंद का नाद की जिस समय श्रद्धा ज्ञान में परिणमन है ते समय की आत्मा उपदि हुआ। समझ में आया? जिस समय शुद्धात्मा उपाधि हुआ कब कि उसका परिणमन निर्मल हुआ। ठीक की बात है। निज भाव कर प्रणत ऐसा लिया ना, क्योंकि है कैसा ही कि वितराग सदा आनंद रूप, तो वितराग सदा आनंद रूप निज भाव से प्रणत निज भाव वितराग आनंद रूप प्रणति। ये बात है क्या? तो मरम नहीं बातों से समझ में आया? वितराग सदानंद एक रूपेण सर्व प्रकारेण उपाधि भूतेन प्रणमति तदा तदा में ते समय क्या निकाला है। संस्कृत में तदा पढ़ा है। सर्व प्रकार का मतलब क्या है? इस पूर्ण एक तरफ का झुकाव सर्व प्रकार कोई राग की अपेक्षा नहीं करनी, आंख पूर्णानंद पर। कोई राग का आश्रय, निमित्त का आश्रय, भगवान का लक्ष्य का आश्रय, वाणी का सुनने का आश्रय कोई प्रकार नहीं। समझ में आया? भगवान की तो आगे आए। दिव्य धनी से भी आत्मा जानने में आता नहीं, वो आगे आए। वेद ने वाणी शास्त्र, वेद का अर्थ दिव्य धनी किया, शास्त्र का अर्थ मुनियों ने वाणी किया, उससे भी आत्मा जानने में नहीं आता। कहीं तो पर वस्तु है, पर लक्ष्य में लक्षण हो तब तो राग होता है। समझ में आया? ये तो विचारे थी पोता थी ना अपने से। देव ध्वनि गण ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, ऐसा आता है बनारसी विलास। हमारे प्रणव मंत्र है, 55 में छपा है। मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, बनारसी दास में बनारसी विलास पुस्तक है, उसमें आए तो 55 के हिसाब में छपा था। जब ओम पधराया ने स्वाध्याय मंदिर में, ओम ओम इटाली का पत्थर है, उसमें ओम इटाली का बड़ा पक्का, 55 फागुन मास में 33.5 वर्ष हुआ तब आज छपा है। हजारों छपी थी। हमारे हिम्मत भाई गाते हैं पीछे पंडित।
ओम मुख ओंकार ध्वनि, भगवान के मुख में ओंकार ध्वनि उठते हैं, ऐसी भाषा नहीं आती। आपने जब बोले ऐसी भाषा नहीं हो, तो भाषा में तो राग है तो खंड खंड वो तो भाषा आती है। भगवान तो वितराग है तो अखंड भाषा आती है। ओम ध्वनि समझ में आया? ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। चार ज्ञाना धनी गणधर भगवान की वाणी में थे, भाव करके सूत्र बनाते हैं। भगवान की वाणी में अर्थ आया है, समझ में आया? भगवान की वाणी में शुद्ध ज्ञान आया है। क्या कहा? केवल ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान आया है। दौड़ में पास है, दौड़ में, क्योंकि सुनने वाला गंधर थे, उसका शुद्ध ज्ञान हुआ, तो शुद्ध ज्ञान नहीं आया है वाणी में। वाणी में केवल ज्ञान नहीं आया है। दौड़ में पाठ है। भगवान ने भाव शुद्ध ज्ञान से, समझे, वाणी कहा ऐसे। समझ में आया? दौड़ यहाँ है नहीं, भाग में है, दौड़ में। वो श्रावण उदेकम की ध्वनि निकलती है ना, वो समय का प्रथम है ત્યાં दौड़ में। हाँ, तिथि है नवरात्र में, वो उसमें आए। समझ में? क्या किया है? શું કહ્યું? भगवान के ज्ञान में शुद्ध ज्ञान आया, शुद्ध ज्ञान आया। यूं कहा, केवल ज्ञान से कहा गया, ऐसा नहीं केवल ज्ञान आया वाणी में नहीं। वाणी में क्या करते? समझ में आया? तो ये ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रचि आज्ञम उपदेश है, भविक जीव संशय निवारे। सो सचार शारदा पासु भक्ति उड़ान, छंद भुजंग प्रियात में अष्ट कहूं बखाना। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, वितराग वाणी ऐसी है। सुधा सुधा धर्म संसाधनी, सुधा એટલે अमृत, अमृत रूपी धर्मना संसाधनी धर्मशाला है। वितराग धर्मशाला है। 40 वर्ष जो वाणी आ धर्मशाला, भगवान की वाणी आशा 4.5 लाख। देखो, सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, સુધાનો અર્થ ભાઈ અમારે બીજો બીજામાં, પણ હું તો એવો અર્થ કરું, સુધા તાપ નિર્નાશની મેઘમાળા, અમૃત રૂપી મેઘમાળા મોહના તાપના નાશ કરનારી છે। બનારસી દાસ છે, પ્રણવ માધ્યમ છે, પ્રણવ માધ્યમ, ઓમકારના માધ્યમ આખું પુસ્તક છે। મહામોહ વિધંસની મોક્ષદાની, महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। वागेश्वरी એટલે વાઘની ઈશ્વર, વાઘેશ્વરી નહીં, કોઈ સરસ્વતી વાઘની ઈશ્વર। नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी, वागीश्वरी, वाणी में ईश्वर, वाणी भगवान की। नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। विशेष अंदर आया है, विशेष। चिदानंद भोपाल की राजधानी, चिदानंद भोपाल की, चिदानंद रूपी राजा भोपाल एनी वितराग वाणी ये राजधानी है। ये वाणी है। नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। मोटू છે।
आए कहते हैं जी समय तब अपना ऐसा, ये अर्थ है? जी समय यह जीव वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि। क्योंकि हम तो संबर को उपाधि कहा है, मोक्ष मार्ग में आया, निद्रा को हित कहा है, मोक्ष को परम हित कर कहा है, तो वो अपेक्षा से व्यवहार। तो सब तरह उपाधि भगवान आपका है। समझ में आया? ये तो प्रकट करने की अपेक्षा से त्या उपाधि कहा है। संवाद प्रकट करने लायक है, निद्रा करने लायक है, मोक्ष होने का ये अपेक्षा है। बाकी सब तरह उपाधि हो तो भगवान पूर्णानंद का नाथ उपाधि है। कब? जब वो तरफ क्या वितरागी परिणति करते हैं तो આમાં લક્ષ્મી બક્ષ્મીનું કઈ એ આ બે શેઠિયા બેઠા જોડી જો કરોડપતિ બે આમાં કઈ કરોડપતિ પણ એની કિંમત નથી આવતી આમાં કઈ। આ ભગવાન अनंत लक्ष्मी का पति भगवान कहते हैं भग नाम लक्ष्मी वान नाम रूप। जैन लक्ष्मी रूप है, लक्ष्मी वाला है। कैसी लक्ष्मी? अनंत ज्ञान अनंत आनंद आया ना, सदा वितराग सदा आनंद रूप, सदा वितराग ने सदा आनंद रूप। ऐसा आत्मा को दृष्टि में लेकर अनुभव करते हैं, उस समय ये आत्मा उपाधि हुआ। समझ में आया? अमृत नहीं आओ ये बात सुनाई। तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है। जिस समय ये वितराग भाव प्रणमते हैं तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है, ऐसा अभिप्राय जानो। गाथा का अभिप्राय है विशेष के। हमें जन्म न लिया, जन्म पीछे जो देह हुआ, ये जीव तू जरा मरण देह के जानकर वृद्धावस्था देह की है, तेरी नहीं। और मरण भी देह का है, तेरा नहीं। ऐसा जानकर डर मत कर। एको थे देह पेखी जरा मरणु, पेखी એટલે દ્રષ્ટા દેખીને मां भव जीव करी जो अजरा मरु बंबू थोड़ू सो अपाणु मुड़ी। देह के बुढ़ापा मरने को देखकर डर मत कर, ये तेरी चीज नहीं, तेरे में वृद्धावस्था आती नहीं। शरीर क्यों? समझ में आया? तेरे में तो युवान अवस्था तो कहा था एक बार। राग की एकता बुद्धि रखकर बहिरात्मपना रखना वो बाल अवस्था है जीव की। शरीर की बाल अवस्था हो तो जड़ की है, उसके साथ आत्मा को कुछ संबंध है ही नहीं। भगवान आप परमात्मा स्वरूप है ना, परमात्मा स्वरूप ही है आत्मा भगवान। उसको छोड़कर देहादीनी अवस्था में युवानी नमनाई मजबूताई देखकर उसमें हरख होना ये मिथ्यात भाव है। समझ में आया? देह की युवानी अवस्था, इंद्री जड़ की पुष्टि,
ये सब में उत्साह होना मिथ्यात्व भाव है। तो यहाँ कहते हैं कि देह की वृद्धावस्था और मरण देखकर डर मत कर, युवान अवस्था देखकर अभिमान मत कर, और वृद्धा ने मरण अवस्था देखकर डर मत कर। तेरी चीज तो भगवान परमानंद स्वरूप परमात्मा तुम तो है नहीं, उसमें तो बुढ़ापा शरीर का मरण जन्म ये तो है नहीं, उसमें विकार है नहीं, एक समय की अल्पज्ञता भी उसमें है नहीं। ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, उसको अंतर में ध्यान करके उपाधि कर हम कहते हैं। समझ में आया? मार्ग ऐसा है, अंतर में ध्यान में ऐसा परमात्मा स्वरूप उपाधि करके ग्रहण करके सत्कार करके है, ऐसा सत्कार किया। पूर्णानंद स्वरूप है, ऐसा स्वीकार किया, उसने है ऐसा माना। समझ में आया? यहाँ तो ये कहते हैं जो अजर अमर परम ब्रह्म स्वभाव है। भगवान तुम तो जरा नहीं मरण से रहित अजर अमर है। अजर नाम वृद्धावस्था से रहित, मरण नाम देश से छूटने से रहित है। अजरामर भगवान आत्मा। भगवान तो अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा अभी અત્યારે અધર્મ રહે। उसकी दृष्टि में लेना, उसका सन्मुख होकर स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक दर्शन में धर्म है। देह की क्रिया होती है, ये तो जड़ की है, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, ये तो सब जड़ की पर्याय है। इसमें तेरा कोई अधिकार है नहीं कि मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। तेरा अधिकार तो पर से भिन्न स्वरूप का स्वामीपना, वो तेरा अधिकार है। क्यों અહીં कहा? देखो अजर अमर એટલે નિષેધ ક્યાં પહેલા જન્મ મરણ રહિત। હવે અસ્થિ है कैसा? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है। परम ब्रह्म जिसका ज्ञान शरीर है, आनंद जिसका शरीर है। समझ में आया? आते हैं ना ज्ञान विग्रह, ज्ञान विग्रह। प्रभु तुम तो ज्ञान शरीर है न, और अतीन्द्रिय आनंद शरीर, वो शरीर तेरा। आत्मा की बात कह रहे हैं। अंदर विराजते उसकी, सिद्ध की नहीं। सिद्ध की भी पर्याय है, ये भी है नहीं। जो ध्रुव स्वभाव है वो तो पर्याय में आता ही नहीं कभी। सिद्ध की पर्याय में भी द्रव्य आया नहीं है।
द्रव्य तो त्रिकाल पर्याय से भिन्न रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, આવી વાત છે પ્રભુ। બહારની આ બધી મોહ જાળ, અનુકૂળ શરીર ને પૈસા મકાન ને આબુ ને, અરે ધૂળ પાણી। भगवान परम ब्रह्म स्वरूप, भगवान तुम तो परम ब्रह्म स्वरूप है ने। भगवान तेरा शरीर तो ज्ञान शरीर है, आनंद शरीर है। कभी उसका स्वीकार किया नहीं, उसको छोड़कर राग आदि का उपाधि किया, उसको भगवान यही हो गया। परम ब्रह्म स्वरूप होने पर भी राग का दया दान व्रत भक्ति आदि का पुण्य है, उसको भी आदर किया। उसने भगवान त्रिकाल या आनंद का नाथ का यही किया। समझ में आया? जिसने भगवान परम ब्रह्म अजर अमर, उसको जिसने आदर किया, उसने राग आदि ही हो जाते हैं, करना पड़ते नहीं। समझ में आया? ऐसा मार्ग है भगवान। परमात्मा प्रकाश है ना, कि आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा प्रकाश स्वरूप ही है। केम बेसे राग बुद्धि, निमित्त बुद्धि और पर्यायी बुद्धि छोड़े तब वो बात में से। समझ में आया? संयोगी चीज की बुद्धि छूटे। एक त्रिगाथा में कैसा कहें, ये आगे देगा। 5 इंद्रिय का विषय छोड़कर ત્યાં તો ભગવાન ने भगवान की वाणी भी इंद्रिय का विषय कहा है। नीचे आएगा, नीचे है उसमें 5 इंद्रिय का विषयों को छोड़कर। 31वीं गाथा समय सार में जो इंद्री झीणीता ऐसा शब्द है, उसकी व्याख्या ये है कि द्रव्येंद्री और भावेंद्री खंड खंड एक एक विषय को जनाने वाली और भावेंद्री का विषय। लोगों ने आंखों में लगे टीका करे, स्त्री विषय है ऐसा भगवान की वाणी विषय, बापू और विषय है। ये शुभ भाव का वो है, वो अशुभपन है तो विकार का विषय। भगवान ने तो ત્યાં लग कहा कि हमारी वाणी ने हम तुम्हारे इंद्रिय का विषय है, अनिंद्रिय का विषय तो तेरी चीज है। ये हिंदी जीनिता में इंद्रिय ना 3 अर्थ लिया है। जो इंद्री जीणिता, जिसने इंद्री जीती, और नाम स्वभावं अध्ययन मनुदि आदम विनान स्वभावी भगवान चैतन्य ब्रह्म। ये इंद्री ने इंद्री का विषय से भिन्न पर है, उसको अंतर्दृष्टि दिया, उसने इंद्री का विषय जीत लिया। तो वो विषय એટલે कि भगवान की वाणी ने एमा तो डाला है। पंडित जी एक त्रिगाथा का भगवान की वाणी ने भगवान पर इंद्रिय का विषय है। जही है। अरे संकीर्ति को यहाँ कहते हैं। तेरे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो
इंद्रिय का विषय, वो इंद्रिय भगवान की वाणी ने भगवान को ત્યાં तो इंद्रिय कहा है। समझ में आया? जैसे यहाँ जड़ इंद्री, भाव इंद्री, एक एक इंद्री का एक एक विषय, खंड खंड जनावे वाला भाव इंद्री, एक एक विषय को जानते हैं तो अर्थात ज्ञान खंड खंड को जनाते हैं। इसका अर्थ क्या है अपने पंडित जी ने? खंड खंड ज्ञान अखंड वस्तु है, तो भाव इंद्री तो खंड खंड ज्ञान को जनाती है, तो वही पर विषय हो गया। ऐसे जड़ इंद्रिया है 5, ये भी पर विषय हो गया। और भगवान ने भगवान की वाणी, वो भी इंद्री कहा है। भाव इंद्री, जड़ इंद्री ने भगवान, भगवान की वाणी, प्रतिमा, मंदिर, समित शिखर, सबको इंद्री कहा है। गजब बात है। उसको जीतना अर्थात ओ तरफ से लक्ष्य छोड़ना। भगवान की वाणी और भगवान की प्रतिमा, जिन सार की बनारसी दासना, तो वो भी उसका लक्ष्य छोड़ना। ये तो शुभ राग काले, उसमें वो विषय निमित्त बनते हैं कि शुभ करते हैं उसको। समझ में आया? उससे निमित्त नहीं, शुभ नहीं होता। ये शुभ विषय, शुभ राग का विषय है, तो उसको भगवान तो एम कहे कि हम भी तुम्हारे हिसाबे हम इंद्री है, तुम्हारी अनिंद्री जो है चीज तो तुम्हारी पैसा है। समझ में आया? हम तो तुम्हारा अपेक्षा से हम इंद्रिय है, तुम्हारी अनिंद्रिय तुम्हारी पास बिनती है। आओ मार्ग से प्रभु, जन्म मरण अंत लावવાની વાત સાથે આવશે હમણાં થોડું આવે। बहुतीरंग प्राप्त નથી આવશે, 72 માં આવશે। 72 है न? 72 बहुतीरम प्राप्त भवना तीर ने पार કરી નાખવાની વાત। भगवान आत्मा जिसमें भव नहीं, भव का भाव नहीं, और भगवान इंद्री का विषय पर उसमें भगवान ने वाणी, इसमें नहीं। समझ में आया? ऐसा आत्मा को तुम परम ब्रह्म शुद्ध आत्मा स्वभाव है, उसको तू आत्मा जान है। देखो, भगवान की वाणी को आत्मा नहीं, भगवान वाणी नो आत्मा नहीं है। एक समय की पर्याय भी आत्मा नहीं। क्या कहते हैं? देखो, परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव, परम ब्रह्म स्वभाव, नित्यानंद प्रभु, सदृश स्वभाव, एक रूप स्वभाव, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, ऐसा पाठ है संस्कृत टीका में, जैसनाचार्य में। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, शुद्ध नाम पवित्र, बुद्ध नाम ज्ञान का पिंड, और एक स्वभावी, भेद नहीं, पर्याय का भेद नहीं जिसमें नहीं। ये तेरा अनिंद्रिय आत्मा, ये ते तुम है, ये अनिंद्रिय का विषय है। अंतर्मुख राज ने ज्ञेय होते हैं छते, ज्ञान की पर्याय को आ बाजू झुकना, राग हो, शरीर हो, ये सारा संसार हो, तो वो तरफ का ज्ञान की पर्याय जो है, ये पर्याय द्रव्य में झुकना, परम ब्रह्म भगवान आत्मा,
उसकी प्रजा पर्याय को पिता तक झुकना। समझ में आया? ये कहते हैं देखो भाषा परमात्मा प्रकाश अपने भगवान बपोर भी चलते हैं, दोपहर को समय साथ चलते हैं। परमात्मा समय सारे परमात्मा है। द्रव्य कर्म भाव कर्म हो कर्म से रहित भगवान ये समय सारे है। ये समय सारे वह भगवान, उसकी दृष्टि करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। निमित्त ने राग की दृष्टि करने से राग प्राप्त होता है, जिस स्वभाव में नहीं। समझ में आया? किराना काम से भाई कहीं पंडित राय ने एन काम नहीं है। 11 पट डाला अनंत है, 11 पट डाला आते हैं। 9 पूर्व लब्धि हो गई, ये प्रजा पढ़ाई नहीं। 11 तो पढ़ने से आता है, राग की मंत्र आते, पर 9 पूर्व ही पढ़ना से लब्धि हो जाती है। 9 पूर्व ओके पढ़ने से नहीं, छता ऊपर लक्ष्य वस्तु है। समझ में आया? अनंत ऐसी 9 गुरु की लब्धि प्राप्त हो गई है, वो कोई चीज नहीं। जिसमें भगवान प्राप्त न हुआ ये वस्तु नहीं हम कहते हैं। थोड़ापन मतीय ने शुद्ध ज्ञान में परमात्मा प्राप्त हुआ तो इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? परम ब्रह्म भगवान आत्मा, उसको तो आत्मा जान एम कहिए ना, गुरु एम कहिए। दिगंबर संत योगेंद्र देव प्रभु मुनि एम छे ने, एक उतर गाता मुनि हजरा मरु बंबू परू पर एट उत्कर्ष मुसुम છે ને અંદર આવશે। તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। બાકી રહેલો 71મી ગાથાનો વિસ્તાર આપણે આવતી વખતે લઈશું। હવે આજના સ્વાધ્યાય સંબંધી પ્રભુ આપના પ્રતિભાવ કે પ્રશ્ન હોય તો વિચાર કરીએ। તે પહેલા 1-2 વાત હાઇલાઇટ કરી છે એ આપણે લઈ લઈએ 70મી ગાથામાંથી। અહીંયા પાના નંબર 255 ઉપર ગુરુદેવ કહે છે ઉપરથી ભાવલિંગ પ્રગટ્યું એ દ્રવ્યની દ્રષ્ટિથી પ્રગટ્યું, પણ હવે હજી ભાવલિંગની દ્રષ્ટિ છોડી દે, એનો આશ્રય છોડી દે। એનો અર્થ શું? ભાવલિંગ પ્રગટ્યું, દ્રવ્યલિંગ ને ભાવલિંગ એમ આપણે કહીએ છીએ। તો દ્રવ્યલિંગ જે છે એ તો બાહ્ય આચાર રૂપ છે, 28 મૂળ ગુણ સહિત આખું ચારિત્ર જે છે તે દ્રવ્યલિંગ છે, પણ એવું જ અંતરંગમાં ભાવલિંગ છે એમ આપણે કહીએ તો છીએ। પણ અહીંયા કહેવાનો અર્થ બીજો છે કે ભાવલિંગી મુનિ જ્યારે કહીએ છીએ તો જેને પોતાના આત્મા
નો અનુભવ વર્તે છે ને વારંવાર પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવે પરિણમી જાય છે, એ ભાવલિંગી છે. બાહ્યમાં દ્રવ્યલિંગી છે એની માત્ર સભાનતા છે એમ નથી, પરંતુ પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવે વારંવાર થઈ જાય છે, એ ભાવલિંગી મુનિ છે. મુનિ તો 7મા ગુણસ્થાનની દશામાં પ્રચુર સ્વસંવેદન સહિત હોય અને 12માં આવે છે તો થોડીક ક્ષણ પૂરતા બહાર આવે ને પાછા સ્વરૂપમાં ચાલ્યા જાય છે. એટલે એવા ભાવલિંગી મુનિની વાત અહીંયા વિચારીએ તો અહીંયા કહે છે કે ભાવલિંગ પ્રગટ્યું, તો એ દ્રવ્યની દ્રષ્ટિથી પ્રગટ્યું, એટલે કે પોતાના ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ કરતા, ધ્રુવનું લક્ષ કરતા, એમાં એકાગ્રતા કરતા એવું ભાવલિંગ પ્રગટ થયું છે. તો એ પર્યાય છે. ભાવલિંગ પ્રગટ થયું એ શું છે? પર્યાય છે. એટલે કહે છે કે હવે એ ભાવલિંગની દ્રષ્ટિ છોડી દે, એટલે પર્યાયની દ્રષ્ટિ છોડી દે. જે નિર્મળ પરિણતિ થઈ છે એવી એ પરિણતિની દ્રષ્ટિ છોડી દે. એ પર્યાય છે. ભાવલિંગ જે છે એ પર્યાય છે, એટલે એની દ્રષ્ટિ છોડી દે, એનો આશ્રય છોડી દે. એટલે કે એને તું સ્મૃતિમાં લાવીને પાછો સ્વરૂપમાં નહીં જઈ શકે. નિર્મળ પરિણામ થયા હોય તો પણ એ પરિણામ ને સ્મૃતિમાં લાવવાથી પોતાના સ્વરૂપમાં જવાતું નથી. એ પરિણામ તો થયા ત્યારે થઈ ગયા, એ પર્યાય જ્યારે થવાની હતી ત્યારે થઈ ગઈ, એ વાત તો પૂરી થઈ, એ પર્યાયનો તો વ્યય થઈ ગયો. એટલે ખરેખર તો એમાં એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી, એટલે એમ એની દ્રષ્ટિ થઈ શકતી નથી. એ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી, એ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય શું છે? ત્રિકાળી શુદ્ધ વસ્તુ છે, તે દ્રષ્ટિનો વિષય છે. એટલે અહીંયા આ ગુરુદેવે જે રીતે કહ્યું કે ભાવલિંગ પ્રગટ્યું એ દ્રવ્યની દ્રષ્ટિથી પ્રગટ્યું, પણ હવે હજી ભાવલિંગની દ્રષ્ટિ છોડી દે, એનો આશ્રય છોડી દે, આ વાત છે. એક અહીંયા નાનકડી વાત છે પણ અગત્યની વાત છે. પાના નંબર 257 ઉપર અહીંયા ઓમકાર ધ્વનિ વિશે ગુરુદેવે વાત લખી છે, કહી છે અહીંયા કે ભગવાન તો વિતરાગ છે, માટે અખંડ ભાષા આવે છે. ઓમકાર ધ્વનિ, ભાષામાં ખંડ પડતા નથી. પોતે વિતરાગ થયા છે, તો હવે જે વાણી નીકળે છે એ પણ ખંડ ખંડ નથી નીકળતી. કેવી વાત કરી છે! કેમ કે ઓમ એમાં ખંડ પડી શકતા જ નથી, એમાં ખંડ ન પડી શકે. ઓમ બોલીએ છીએ તો ઓમ, અને એ ઓમ છે ધ્વનિ છે, અને ધ્વનિ છે એટલે એની સાથે આમ જોવા જઈએ તો એ ધ્વનિ છે, તો કોઈ પણ ધ્વનિ હોય તો એમાં એનર્જી હોય, એમાં શક્તિ હોય. એટલે એ ધ્વનિ જે પ્રભુના આખા શરીરમાંથી જે રીતે નીકળે છે, તો એ શક્તિનો એવો પ્રભાવ પડે છે કે ત્યાં બેઠેલા, સમુદ્રમાં બેઠેલા બધા જીવો જે છે એને એક પ્રકારની સાતાનો અનુભવ થાય, અને પોતાના પ્રશ્નોના સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય, અને કોઈ વેરઝેર પણ રહે નહીં, કોઈ વેરઝેર રહેતા નથી. એટલે એ પણ એનું સામર્થ્ય છે. અને બીજું એ જ્ઞાનનો ધોધ છે, અને એમાંથી ગણધર ભગવાન 12 અંગ ને 14 પૂર્વની રચના કરે છે. તો એ ભાષા તરીકે અહીંયા ગુરુદેવે વાત લીધી છે કે એમાં ખંડ પડતા નથી, એવી ભાષા છે. ઓમ અખંડ ભાષા છે. એ ઓમ ની અંદર પંચ પરમેષ્ટિ નમસ્કાર પણ થઈ જાય છે. ત્યાર પછીથી પાના નંબર 258 ઉપર અહીંયા બીજા પેરેગ્રાફની અંદર વાત લીધી છે કે આ બનારસી દાસજીનું પ્રણવ મહાત્મ્ય છે,
એ પ્રણવ મહાત્મા જે છે એમાં ઓમકારના મહાત્માનું એ આખું પુસ્તક છે. એટલે ઓમકારનું મહાત્મા એમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. એવું એ પુસ્તક છે. એને પ્રાપ્ત કરી અને સ્વાધ્યાય કરવાનો આપણે એક નિર્ણય કરીએ. 71મી ગાથા ઉપરના પ્રવચનમાંથી આપણે અત્યારે કંઈ ખાસ લીધું નથી. બધી વાત સમજાય એવી અત્યાર સુધી આવી છે. ન્યાય જે આપ્યા એ પણ સમજાય એવા આપ્યા છે. ઇન્દ્રિય વિશે પણ આપણે જાણીએ છીએ, કોને ઇન્દ્રિય કહે છે. હવે